This is Mahesh Gulani. You're watching Guru Gyan channel, and Mahesh Gulani, that's me. I am an influencer come entrepreneur. Now, today I'm going to talk about one very important issue, which is denim. Denim jeans that we normally wear. Everybody, any age wears jeans. So therefore, it's not a fashion for only young or only old or middle age or married, unmarried. Everybody wore. But today, what I am going to talk to you is that is the denim jeans dying, or it's just media hype? You know, on a lighter note, there's something about denim jeans and me which is common. We both feel tight after any festival. Yeah. So let's discuss and talk about denim jeans, and are they really going out of fashion? And what are the reasons for all that? After this small interval, I'm back, Mahesh Gulani, and let me first begin with the history of denim jeans, which started many, many years ago, about 200, 150 to 200 years, when Levi's had first started and experimenting on this material, which was denim, and made jeans out of it. Uh, and probably thought this would be good for the workers in the mills, in the factories, because what looked like the material and other things, they look like they're very rough, tough, and don't tear easily. And even if there is some spot, stain or anything, it comes out easily, and आपको regularly धोना भी नहीं पड़ता है. तो नॉर्मली फैक्ट्री वर्कर्स, मिल वर्कर्स, वो इतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, तो रोज़ धोना भी नहीं चाहते हैं. दे माइट वेयर इट फॉर 5-6 days and then wash it, which was okay. Sometimes so you don't need to wash even for a month. Yeah, you'll be surprised. So then they became popular in the UK and in the United States. And then Hollywood started, Marlon Brando and all started wearing them in some Hollywood films, and they looked good on them. Naturally, jeans look good on anybody, whether you're a man or a woman, and they became popular, and more stars started following. Then it was found that it is very rough and tough, the material, the fabric that's used. Then the hippies, the hippie generation, started wearing them. Now they had their own reasons, because they went out for 2-3 months and just took a pair of jeans with them, sometimes one jean and a t-shirt, and move around all over the world. Then followed by fashion, uh, even the Bollywood film, and the fashion designers started making these denim jeans, and it just became a craze. You'll be surprised that I have a picture of a bride and groom in Telangana. They wanted to be different, so they said we will not go for elaborate outfits, Indian outfits like a sherwani or a Punjabi kurta and a salwar and a sari, very expensive sari for a girl. We'll wear jeans, and they were there on the social media. But that was just one fashion statement that they made, which didn't become popular really. Uh, so then what happened? Then came in the COVID. The COVID put everybody at home. आप लोग घर में बैठने लगे, आप लोग घर में सब कुछ करने लगे, यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा था. तो ये सब पॉपुलर हो रहा था. तो इससे क्या हो रहा था, लोग इजी वेयर पहन के अपना काम करते थे. पहले तो ऑफिस जाने के लिए यू हैव टू बी प्रिम एंड प्रॉपर, बट अब घर में जब बैठे हो तो आप शॉर्ट्स पहनो, टी शर्ट पहनो, कुछ पहनो ना पहनो, दैट वाज अप टू यू. सो थोड़ा बहुत जीन्स का थोड़ा वो कम होने लगा. और अब स्टार्ट सब लोग ने ये महसूस किया कि फैशन एक्चुअली ये नहीं है कि एक ट्रेंड है. अब फैशन वो हो गया है जो मेरे को सूट करे भाई, मेरे को सूट करे, एक मेल को सूट करे, एक फीमेल को सूट करे, एक एक मैरिड मैन को सूट करे, एक बहुत सीनियर सिटीजन है उसको सूट करे. वो फैशन हो गया. वैसे जीन्स पहन के आप लोग को ऐसे लगता है कि आप जब पहनते हो तो आप नील नहीं कर सकते हो, आप प्रेइंग पोजीशन में आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हो, या आप कई बार ऐसे जब आप इंडियन बाथरूम्स में भी होते हो तो जीन्स से आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है देन कंफर्ट. तो ये सब देखा गया,
और धीरे धीरे समझ में आ गया कि अब जीन्स का अब यहाँ मतलब उसकी दाल नहीं गलेगी। मैं जब जीन्स बोल रहा हूँ मतलब मेरा मतलब है डेनिम जीन्स, डेनिम जो थोड़ा ब्लूइश कलर होता है, लाइट ब्लू कलर का। तो क्या हो गया, जो फिल्म स्टार्स भी पहनने लगे अब वो भी चेंज करने लगे, और अब थोड़ा फैशन भी ओवरसाइज वाला आ गया है। कॉर्ड सेट्स या पैराशूट पैरल्स या अम्ब्रेला फ्लेयर्स, मतलब जो कुछ भी आपको सूट करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो बन गया फैशन, आज का फैशन। अब इसमें क्या है, वैसे तो क्या था, डेनिम जीन्स थे तो आप उसी में खेल रहे थे, लेकिन इस तरह क्या हो गया, आप किसी भी फैब्रिक के साथ खेल रहे हो। यू कैन वेयर लिनन, यू कैन वेयर शाइनी मटेरियल, यू कैन वेयर वॉश एंड वेयर मटेरियल व्हेन यू आर वेयरिंग सच काइंड ऑफ क्लोथ्स। सो these days it's been observed that people are now wearing different kinds of clothes, different kinds of fashion. They are, which एक्सक्यूज मी, जीन्स पहनने से ना ऐसे भी होता है कि इतना टाइट हो जाता है कि बॉडी ब्रीदिंग भी नहीं करती है। वैसे मैंने अभी जीन्स नहीं पहना है, बट आई एम लिटिल ईजी, और मैंने सोचा ईजी करूं तभी ना आपको बता सकता हूं कि वैसे मेरे हिसाब से डेनिम जीन्स अभी गुम हो रहे हैं, डाइंग। अगर मर रहा है ये फैशन, मैं समझता हूँ ये ज़ाब्ती होगी जीन्स के अगेंस्ट, डेनिम जीन्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये मर नहीं सकता। वाकई ये इतना अच्छा है, पहनना इजी, सस्ता, टिकाऊ, और हमको इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि डेनिम जीन्स जाएं, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट मटेरियल। हम कॉटन और डेनिम सबसे ज़्यादा बना रहे हैं, और स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि 2030 में हम ट्रिपल बनाएंगे जो आज 2026 में बना रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि इसका मतलब हमारे डेनिम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जीन्स बनाने वालों को ये पता है कि ये फैशन जाने वाला नहीं। फैशन बोलो या अब तो ये एक एवरीडे वेयर भी हो गया। जीन्स, डेनिम जीन्स में अभी थोड़ी चेंजेस आई हैं, अब फ्लेयर्स आ गए हैं, डेनिम जीन्स में भी स्कर्ट्स आ गए हैं, लूज मटेरियल, गर्ल्स के लिए लूज गाउन टाइप्स, कॉर्सेट्स भी यहाँ निकल गए हैं, शॉर्ट्स भी वेरी कंफर्टेबल निकल गए हैं। और लड़के अगर जीन्स जो लूज फिट वाले पहनते हैं तो वो उनको टाइटनेस नहीं लगती है, कई बार उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। आप देखोगे वो अपने आप को थोड़े स्क्रैच कर रहे हैं, अंडरवेयर थोड़ा टाइट हो जाता है। तो ये सब बातें होती हैं। अब फैशन जब चेंज हो रहा है, और आज अगर देखोगे कि फैशन कैपिटल जैसे मिलान, सिंगापुर, थाईलैंड, यूके, यूएस में दूसरे मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बट डेनिम भी यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि ये मैं गलती नहीं करूँगा कि मैं बोलूँगा कि डेनिम जीन्स मर गए, नहीं। मैं तो समझता हूँ ये डेनिम जीन्स वाली लॉबी मेरे पीछे एकदम मेरा गला ये कर देंगे कि आपके स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आए। ऐसी कोई बात नहीं। और दुनिया इतनी बड़ी है, लोग इतने हैं, फैशन इतना इंडस्ट्री, और आज लोग इतना खरीद रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और हर कोई फैशन कॉन्शियस बन गया है। सबको फैशनेबल रहना है। चाहे मैंने अभी कुछ देरी पहले बताया कि फैशन अब यही है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप जिस कपड़े में, जिस मटेरियल में आप कंफर्टेबल हो, आपको इजी लग रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, इवन आप मीडिया, सोशल मीडिया में भी हो और आप कंफर्टेबल हो, तो वही आप कर रहे हो। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, और मुझे ये बताइए कि आप क्या मेरे से अग्री करते हो कि वाकई जीन्स का अब वो आ गया है टाइम कि थोड़े डिस्कम्फर्टिंग ज़्यादा लग रहे हैं डेनिम जीन्स, और अब जो हमारे नए तरीके के वो ट्राउज़र्स आ गए हैं लूज़, और ये तो वो ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। वैसे ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, डिस्क्लेमर, बट आजकल के लोग दुनिया में, जो शहर है जहाँ अच्छे लोग कमाते हैं, वो थोड़े ओबीज ज़्यादा हो रहे हैं, तो जीन्स उनके ऊपर थोड़ा टाइट ज़्यादा होते थे। टाइट जीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आजकल लूज़ भी निकल गए हैं, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप लूज़ जीन्स भी पहन सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी मटेरियल आप इस तरह पहनो। और मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़े ओबीज हो या बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, तो उस जीन्स मटेरियल जो है, डेनिम मटेरियल को आप टेलरिंग से बनाओ, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल अब नहीं हो रहा है। क्या था, इलास्टिक भी थी या कुछ भी था, बट अगर आपका अटपटा फिजिक है, यू मे बी अ गर्ल और बॉय, बट वो फिटनेस वो नहीं आने से ना आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो, तो इसलिए टेलरिंग करिए। अब देखिए, जीन्स के अगेंस्ट जो लॉबी थी
वो ये बोलती थी कि जीन्स डेनिम जीन्स बनाने में पानी का बहुत खर्च होता है, और अगर आप धोते भी हो जीन्स तो आपको बहुत पानी का कंज्यूम करना पड़ता है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, कई डाइज यूज़ होती हैं, अ, और भी कुछ मटेरियल्स हैं जो यूज़ होते हैं जो आजकल हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि लोग कहते हैं कि अब डेनिम को थोड़ा विराम देना चाहिए। मैं विराम बोल रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना उनका डेनिम जीन्स का मर्डर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसको थोड़ा 1-2 साल अगर हम हटा देते हैं फिर वापस आ जाएगा। अगर फैशन 150-200 साल से चल रहा था तो इतना जल्दी तो जाएगा तो नहीं। और लोगों को फैशन डिज़ाइनर्स जो है उनको इतनी आइडियाज़ हैं, इतना कुछ दिमाग चला रहे हैं, और आज एआई भी आ गया है जो उनकी हेल्प करेगा टू मेक good use of the denim material and make a wardrobe or something which is very comfortable, easy to wear, not very expensive on the pocket, and any caste, creed, religion can wear it without thinking of this is not allowed or anything. Then, by all means, it can come. I have stopped wearing these denim jeans because I find them a bit tight on me. My physique is okay. I am 80 kgs and 6 feet tall, but I do find that these days the very oversized trousers and shirts that I'm getting to wear and which are available at very cheap rates of 299 for shirt and 599 to 799 for trousers, and they are very fashionable, and in my opinion much better than the uh, corduroy jeans or the denim jeans that we talk about. And denim jeans or even brown jeans or black jeans or any jeans, but they are all the same according to me. So are you guys prepared to see fashion by 228, 229, 30 without jeans, without denim jeans? I will ask the Gen X or Gen Alpha, can you see life without denim jeans? Or you are not so used to, as you saw much of your parents or grandparents wearing, but you're very comfortable with these loose clothes that you get to wear now. Very colorful, a lot of stripes, a lot of checks, and it's so pleasing to the eye. Besides, uh, the denim jeans, they are single color. At least once upon a time, they were thought that they were enhancing your physique. You look better, you look smarter. But now people are going in for better comfort. Comfort is very important, and also health. And even if you're obese or if you're very thin, loose fitting clothes make you look nice. So I guess you will agree with me. And if you don't, of course, I'm sure this is my point of view, and I have researched this whole jeans culture. By the pictures that I've inserted, you will come to know I've done a lot of research. I'm not going to bombard you, bomb you with figures and how many million metric material is coming out or not coming out, or how many millions Levi's, Wrangler, or anybody made. That's for someone who are people who are professionals and who are in this industry. You know, they will like all those figures, but then they can get it anyway on the net. So I address mostly Gen X and people who are middle aged and who understand simple language. So therefore, I would think that with that I end this podcast. That So, there is a comment section. See, I'm not one who will say like my video, share my video, because if you like my video, you will definitely share it. And if you feel that you have your point of view, your POV, please give it in the comment section. Comment section, everybody reads it. Like, if I have a point of view, have people told me, like it's like speak out loud and tell me that I was wrong. Please, by all means, you tell me where I am wrong. And comments on our feedback. Comments, your comments, आप जो लिखते हो पीछे after this comment section में, वही हमारी कमाई है. मेरे को कोई मोनेटाइज नहीं करना है मेरा यूट्यूब का. मेरी कमाई है आपकी कमेंट्स, जब आप तारीफ भी करते हो और जब मुझे सजेशंस भी देते हो.
कई बार सजेशंस भी आती हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ कि खुदा हूँ, आई एम गॉड, दैट आई एम वट एवर आई से इज़ राइट. It's just that I've got a platform to talk, and I have a way to talk. But otherwise, you people are also good enough to व्यू योर ओपिनियन. आपको कुछ भी बोलना हो जीन्स के बारे में, डेनिम जीन्स के बारे में, फैशन के बारे में, और क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा. आपका इंतज़ार रहेगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए. मैं महेश गुलानी आपसे विदाई लेता हूँ आज के लिए. इस डेनिम जीन्स के बारे में जो मैंने बोला है, आप सिर्फ कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और कुछ नहीं बोल रहा हूँ. ये चैनल है गुरु ज्ञान. मैं महेश गुलानी इज साइनिंग ऑफ नाउ.